The afferent neuron receives a nerve impulse from sensory organs such as the skin and transmits it through the dorsal nerve root or sensory nerve into the spinal cord. In the spinal cord, the sensory neuron is connected to the association neuron, which transmits the stimulus to the effector neuron. The efferent neuron then passes the stimulus to effector organs such as the muscles through the ventral nerve cord. Such a reflex arc saves time by bypassing impulse transmission to the brain and thus helps us avoid painful experiences. Eye is the organ of sight. It helps detect dangers in the environment and dispatches signals to the sense. Yeah, good evening, all of you. We have seen the components of a reflex action yesterday. We will just be revising that, and you will be making your notes with me today. So, I'm presenting my screen. Just see whatever you have not written yesterday, you are going to complete those notes, and we are going to see some part today which is in continuation with this. Okay, see that you all have understood this. What is the length of the spinal cord? It is around 42 to 45 centimeters. If asked in inches, it will be 18 inches. The width will be around, or the diameter will be around 2.5 centimeters. 2.5 centimeters. And this spinal cord, it is going to be located in the mid dorsal region of the body. लिखो ये सब, mid dorsal region of the body. You write down, it will be the continuation of medulla oblongata. So which part of the brain is continuing as the spinal cord? It's going to be the medulla oblongata. Length लिखो, width लिखो. Spinal cord is divided into 31 segments लिखो. और ये हर एक segment से एक एक spinal nerve निकलती है. So spinal cord is divided into 31 segments: C8, T12, L5, S5 and 1 coccygeal. You can see the division over here. Now it is like an ice cream cone. It is broader towards its starting and it is tapering towards the end. तो ये जो आइसक्रीम कोन टाइप का स्ट्रक्चर है, जो नीचे आके it is pointed, it is tapered, this is called conus medullaris. Conus medullaris. And then the strand of nerve fibers that continues here in this sacral and coccygeal region, only one thin thread, which is the terminal thread, it is called phylum terminale. लिखो about the phylum terminale, लिखो about the conus medullaris. And phylum terminale will be made up of only the pia mater. यहाँ पे जो पूरी नर्व्स निकलती हैं साथ में, वो अपीयरेंस देती हैं हॉर्स टेल का. So cauda means tail, equinus means horse. This appearance over here in this region gives the appearance of a horse tail, so the name comes from there, that is cauda equina. Now you answer my question. Cauda equina is present in the superior part of spinal cord or inferior part? Inferior part. Yes, it is present. Conus medullaris is present in the superior part or inferior part? Inferior. Inferior. Alright, cauda equina, inferior part. Pelvic girdle side पे present रहेंगे ये सब. So towards the lower part of the body. So there are 31 pairs of spinal nerves.
जो हमने सेगमेंट्स देखे थे उनके साथ सब स्पाइनल नर्व्स हैं. सर्वाइकल विल बी इन द नेक रीजन, सो राइट सर्वाइकल एंड राइट नेक. थोरैसिक के साथ लिखो चेस्ट रीजन, लंबर के साथ लिखो abdominal रीजन, सैक्रल के साथ लिखो pelvic रीजन. And now you tell me, what is the formula of spinal nerves in the body? What is the formula of spinal nerves in the body? 8, 12, 5. Yes? Cervical 12, L5, S5, CO1. Yes. C8, T12, L5, S5, CO1. How is it different from the formula of the vertebral column? C7 and C8. And here is C8. Yes. सो इसको कंफ्यूज नहीं होना है. स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मूला पूछा या स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मूला पूछा तो C8 उस पर ध्यान देना है आपको. वेर एज वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला पूछा तो C7 होगा. स्पाइनल नर्व एक ऊपर से एक्स्ट्रा है बिकॉज वो फर्स्ट वर्टिब्री के ऊपर से निकलती है. ये भी आपको याद रखना है. चलो नाउ वी हैव सीन दैट स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में you will have the central edge shaped which is gray matter. Gray matter means यहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं. वाइट मैटर मीन्स यहाँ पे उनके एक्सॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं. So we had done this drawing yesterday which is showing the white matter, it is showing the gray matter and it is showing the central canal. So you have to remember that central canal, it contains cerebrospinal fluid. Central canal is lined by what? Ependymal cells. Ependymal cells. Ependymal cells are ciliated or non-ciliated epithelial cells? Ciliated epithelial. Ciliated epithelial cells, yes. Central canal is enclosed in which part of the body? Spinal cord. Spinal cord. And spinal cord is enclosed in which canal? Neural cord. Neural canal. Neural canal. Neural canal or the vertebral canal or the spinal cavity. Alright, these will be the MCQs. So outer to inner कैसे अरेंज करेंगे वो भी हमने कल देखा है. स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम अगर सिर्फ ऐसे बनाया बोर्ड एग्जाम में तो 0 मार्क्स मिलते हैं. यू टेल मी व्हाट शुड बी देयर इन दिस डायग्राम, व्हाट मोर शुड बी देयर. ओनली ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वी आर स्पीकिंग. बोलो. मेनिंजेस लगाने पड़ते हैं साथ में. ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बाहर से आपको मेनिंजेस बनानी पड़ती हैं. यू जस्ट हैव टू शो 3 लेयर्स. वन विल बी अधेरेंट ओवर हियर, उसके बीच का अरेक्नॉइड मैटर और बाहर से ड्यूरा मैटर. एंड इफ़ यू कैन शो द एपिड्यूरल स्पेस एंड देन बाहर से आपका वर्टिब्रल कॉलम का बोन, सो वेल इनफ. योर डायग्राम इज कंप्लीट देन. चलो, ग्रे मैटर बाहर निकलेगा यहाँ से डॉर्सली से और वेंट्रली से. ओके, दिस इज़ द एंटीरियर साइड. ये वाला फिशर डीप होता है देखो, पोस्टीरियर वाला शैलो होता है. वी हैव सीन दिस yesterday. This is not for you, I'll tell you where we have to come. Yes, dura matter is going to be the outermost layer, arachnoid matter the middle layer, pia matter the innermost layer. We have seen this diagram. And the spinal nerves, they are going to come out laterally. स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में है देखो, और लैटरल साइड से स्पाइनल नर्व्स निकलेगी. दिस वी ऑल नो. सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे है, एरेक्नॉइड मेंबर लेयर कौन सी रहेगी. पाया मैटर विल बी द इनरमोस्ट मेनिंजियल लेयर. Subarachnoid space is going to carry the cerebrospinal fluid. Central canal is the continuation of the fourth ventricle. This we have seen. Epidural space will be the space between the dura mater and the vertebrae, and majority में इसमें adipose tissue रहेगा. It will provide additional cushioning. Yes. See this diagram. This is a very good diagram. See, this is our cross section of the spinal cord. Then you have these dorsal horns, you have these ventral horns. ये बाहर आ रहे हैं तो ये dorsal root, ये ventral roots. Anterior side से
सॉरी, दिस इज द पोस्टीरियर साइड. व्हाट इज मेकिंग मी से दिस इज द पोस्टीरियर साइड? बोलो. अगर लेबलिंग नहीं भी रहती तो भी ये पोस्टीरियर साइड है, ये मैं कैसे बोल रही हूँ? Due to that medial fissure. ड्यू टू दैट मीडियल फिशर. नो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सी द वर्टिब्री का स्ट्रक्चर. देखो सेंट्रम जो है, हाँ बोलो बोलो. डिस्क ऊपर के साइड में है. हाँ, बॉडी जो है, वर्टिब्रल बॉडी जो है या सेंट्रम जो है वो एंटीरियरली आती है, और जो ये कनाल है, जो वर्टिब्रल कनाल है या न्यूरल कनाल है, ये सेंट्रम के पीछे रहता है, और ये स्पाइनस प्रोसेस जो है ये पोस्टीरियरली आता है. ये वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है, और ये दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस रहते हैं, और साइड से ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिन रहते हैं. देखो जहाँ से स्पाइनल नर्व निकल रही है. नाउ हियर आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट वन थिंग. ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाद ये एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड को जस्ट सराउंडिंग जो लेयर है वो पाया मैटर होगी, और ये बाहर का होगा एरेक्नॉइड मैटर. उसके बाहर होगा ड्यूरा मैटर, एंड ड्यूरा मैटर के बाहर होगी एपिड्यूरल स्पेस. सो सी, ये जो एडिपोज टिश्यू दिखाया है ये एपिड्यूरल स्पेस है. एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी, मीन्स बिटवीन द बोनी वर्टिब्री एंड द ड्यूरा मैटर. उसके बाद सब ड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस, पाया मैटर. सो ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं ये हमको बनानी चाहिए हमेशा व्हेन वी आर मेकिंग दिस डायग्राम. कल हमने नहीं बनाई थी बिकॉज आवर प्राइमरी फोकस वॉज टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. बट नाउ वेन एवर यू आर मेकिंग दिस डायग्राम यू आर गोइंग टू डू दीज 3 layers ऑल्सो. अभी नीट में तो आपको डायग्राम्स बनाने नहीं है, दिस इज अबाउट योर स्टेट बोर्ड एग्जाम. ऑलराइट. और ये बाहर आके ये देखो, वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट यू टू नोट, ड्यूरा मैटर के बाहर ये कंबाइन होते हैं. डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ये ड्यूरा मैटर के बाहर इन द एपिड्यूरल स्पेस यहाँ पे कंबाइन होते हैं. ओके, तो कल वाला जो हमारा डायग्राम था, ये डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट, ये जो जॉइन होते हैं ये एपिड्यूरल स्पेस में जॉइन होते हैं या ड्यूरा मैटर के बाहर जॉइन होते हैं. MCQ. अभी बनाएंगे ये डायग्राम फिर से तो आप देखोगे वो. ओके, सी दिस इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है या एंटीरियर रूट है. अब मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि जब ये अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, तो इनको हॉर्न्स बोलते हैं. ये डॉर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न है, और एक लैटरल हॉर्न भी होता है. डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और लैटरल हॉर्न, एंड देन दिस कम्स आउट. तो जब ये बाहर आता है स्पाइनल कॉर्ड से तो इसको रूट बोलते हैं. दिस इज़ द डॉर्सल रूट एंड दिस इज़ द वेंट्रल रूट. लैटरल हॉर्न बाहर नहीं आता है, लैटरल के वेंट्रल के थ्रू ही आ जाते हैं बाहर. ये डायग्राम अभी हम करते हैं तो आई विल टेल यू मोर इन डिटेल. दिस वी हैव सीन एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम. सो ये मेरी पूरी एक बड़ी स्पाइनल नर्व है, मेरी एक बड़ी नर्व है ये. दिस विल बी लाइंड बाय एपिन्यूरियम. ये जो बंडल्स हैं दे विल बी लाइंड बाय पेरिन्यूरियम, एंड ईच नर्व इट विल बी लाइंड बाय एंडोन्यूरियम. दिस वी हैव सीन. ओके, चलो फर्स्ट वी विल डू आवर डायग्राम. वहीं पे पहले बताती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. चलो, सी द बोर्ड ऑल ऑफ यू. आर यू एबल टू सी द बोर्ड? Yes, ma'am. ओके, चलो. कल जो हमने डायग्राम बनाया था वो इतना था. देखो
वी हैड डन दिस इलिप्टिकल स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा सा और उसको इलिप्टिकल बनाएंगे. देन आई टोल्ड यू कि एच शेप्ड ग्रे मैटर बनाना है, तो हम इसमें ये एच लिखेंगे ऐसे, दिस and this. That is how you can write an H. So this becomes my grey matter, this becomes my white matter, and this is my central canal. ये वाली लेबलिंग्स हमने कल देखी थी. नाउ अगर ये मेरा डॉर्सल साइड है और ये मेरा वेंट्रल साइड है, मीन्स ये मेरा बैक है और ये मेरा एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर मीडियन फिशर ये बड़ा रहेगा और पोस्टीरियरली ये छोटा सा रहेगा. एंटीरियर फिशर जो रहेगा वो ज़्यादा डीप रहेगा, पोस्टीरियरली कम रहेगा. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग. ये एच में हमको एक और यहाँ से थोड़ा सा एलिवेशन करना है, ये होगा मेरा लैटरल हॉर्न. अब लेबल करो डायग्राम को. ये मेरा डॉर्सल हॉर्न, लिखो डॉर्सल हॉर्न. जब ये ग्रे मैटर अंदर ही है स्पाइनल कॉर्ड के, उसको हॉर्न बोलते हैं. ये होगा लैटरल हॉर्न और ये होगा वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न. अब आप मुझे बताओ कि ये स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में कितने हॉर्न्स हैं टोटल. दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 1 2 3. टोटल कितने हॉर्न्स हैं? 6. MCQ. All this is not there in the NCERT textbook, but this is there in the state board textbook. एक्चुअली सिर्फ ये डायग्राम को ही समझना है तो आपको समझेगा कि कैसे 6 हॉर्न्स हैं. देखो ये 1 2 3, ये 1 2 3, so 6 horns. And this grey matter, it divides the white matter also into 6 parts. देखो कैसे. ये जो डॉर्सल पोस्टीरियर फिशर है यहाँ, ये इससे एक सेप्टम आता है यहाँ नीचे, तो ये एक वाइट मैटर, ये दूसरा वाइट मैटर, ये तीसरा वाइट मैटर, ये चौथा वाइट मैटर, ये 5th white matter, ये 6th white matter. It divides the white matter also into 6 parts और 6 bundles. इनको बोलते हैं फनिक्यूलस. फनिक्यूलस. सिर्फ ये डायग्राम समझो. देखो 1 2 3 4 5 6. तो अब अगर मुझे ये फनिक्यूलस को नाम देने हैं तो कितने डॉर्सल हैं? कितने डॉर्सल फनिक्यूलस हैं? 2. कितने लैटरल फनिक्यूलस हैं? 2. कितने एंटीरियर फनिक्यूलस हैं या वेंट्रल फनिक्यूलस हैं? 2. ऑलराइट. टुडे वी आर डूइंग द माइनर डिटेलिंग टू दिस. कल अगर मैं ये सब साथ में बताती थी तो आपको पूरा कंफ्यूज होता था. सो कल का डायग्राम के बाद ये वाला डायग्राम इज योर एडेड ऑन लेबलिंग्स, जिसमें एड ऑन होगी. सो द वाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. एक एक पार्ट को फनिक्यूलस बोलते हैं. तो हमारे पास 2 डॉर्सल होंगे, 2 लैटरल होंगे और 2 वेंट्रल होंगे. इज इट कोइंसाइडिंग विद द नंबर ऑफ हॉर्न्स? देखो मेरे पास 2 डॉर्सल हॉर्न्स हैं, 2 लैटरल हॉर्न्स हैं और 2 वेंट्रल हॉर्न्स हैं. ऑलराइट. तो अब मेरा MCQ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टोटल हॉर्न्स कितने हैं? कितने हैं टोटल हॉर्न्स? 6. टोटल फनिक्यूलस कितने हैं? 6. मेरे पास डॉर्सल हॉर्न्स कितने हैं? 2. मेरे पास डॉर्सल फनिक्यूलस कितने हैं? 2. वैसे ही मेरे पास लैटरल हॉर्न 2 है, लैटरल फनिक्यूलस 2 है, एंटीरियर हॉर्न 2 है और एंटीरियर फनिक्यूलस या वेंट्रल फनिक्यूलस 2 है. अब आप बनाओ ये वाला डायग्राम. इसमें ये 1 2 लेबल करो. ये जो वाइट मैटर है इसको बोलते हैं फनिक्यूलस.
ये जो बंडल ऑफ वाइट मैटर रहेगा यहाँ। तो ये दो डॉर्सल, ये दो लैटरल और ये दो एंटीरियर या वेंट्रल। MCQ अगेन ओवर हियर। चलो अब इसको ऐड ऑन करते हैं। डॉर्सल रूट क्या है हमेशा? डॉर्सल रूट क्या है? सेंसरी है कि मोटर है? मोटर सेंसरी हाँ, सेंसरी सेंसरी। डॉर्सल रूट सेंसरी है, यहाँ से मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड में उनका काम नहीं हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? ब्रेन ब्रेन के पास। तो ये जो डॉर्सल फनिक्यूलस है, जो मेरी डॉर्सल फनिक्यूलस है, ये हमेशा असेंडिंग रहेगी, ये हमेशा ब्रेन के पास जाने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ से सेंसरी फाइबर्स आ रहे हैं और सेंसरी फाइबर्स ही ऊपर जाएंगे ब्रेन के पास। इम्पॉर्टेंट MCQ, डॉर्सल फनिक्यूलस विल बी सेंसरी, यहीं से असेंडिंग ट्रैक्ट्स जाएंगे ब्रेन को। अब ब्रेन से जो वापस आते हैं वो कौन से हैं? ब्रेन से जो वापस आएंगे सिग्नल लेके, मोटर है, मोटर है या फिर डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग है। तो ये जो मेरे मोटर फाइबर्स आते हैं वो जाते हैं मेरे लैटरल फनिक्यूलस में और वेंट्रल फनिक्यूलस में। मेरा लैटरल और मेरा वेंट्रल फनिक्यूलस ये मोटर फाइबर्स को नीचे लेके आएंगे, डिसेंडिंग वालों को। मेरा डॉर्सल फनिक्यूलस ये ऊपर लेके जाता है असेंडिंग फाइबर्स को। इसको कैसे याद रखेंगे? मुझे बोलो, जो सेंसरी है वो ब्रेन के पास जा रहा है, तो सेंसरी कौन सा रूट है? डॉर्सल है। तो ये डॉर्सल फनिक्यूलस सेंसरी होगा जो ऊपर जा रहा है ब्रेन के पास। अब मेरा मोटर कौन सा है रूट? वेंट्रल वाला है। वेंट्रल के साथ लैटरल भी रहता है। ओके, सो जो मेरा वेंट्रल है वो अगर मोटर है तो ब्रेन से जो आ रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स, ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो आएंगे डायरेक्टली मेरे लैटरल और वेंट्रल फनिक्यूलस में। वो यहाँ नहीं जाएंगे सेंसरी एरिया में, वो यहाँ नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली आएंगे लैटरल और वेंट्रल एरिया में। दिस इज अगेन एन MCQ। लिख लो, आपके पास समझ में आ रहा है कैसे लिखोगे? असेंडिंग वाले डॉर्सल फनिक्यूलस से जाएंगे और डिसेंडिंग वाले आएंगे लैटरल फनिक्यूलस और एंटीरियर फनिक्यूलस में। मेरा जो वेंट्रल रूट है वो काम करता है एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि वेंट्रल साइड और लैटरल साइड दोनों पे, और डॉर्सल रूट काम करता है डॉर्सल साइड पे। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर चींटी चल रही है हमारे बॉडी पे तो हमको पता चलता है कि चींटी मेरे बैक पे चल रही है कि मेरे स्टमक पे चल रही है। यू गेट दैट सेंसेशन। सो डॉर्सल रूट काम करता है पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी पे, वेंट्रल रूट काम करता है, या वेंट्रल नर्व जो है, वेंट्रल रैमस एक्चुअली काम करती है एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी पे। हम देखेंगे अभी ये आगे। पहले आप अभी सिर्फ इतना समझो कि डॉर्सल रूट सेंसरी है, वेंट्रल रूट मोटर है, और ये हॉर्न है। लैटरल हॉर्न बाहर नहीं आता है स्पाइनल कॉर्ड के, ये तीनों हॉर्न्स हैं। अब अगर ये बाहर आएगा, लेट मी डू दिस डायग्राम नाउ। ये जो हमने कल बनाए थे ये रूट्स हैं। अभी व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट बिकम्स रूट। सो रूट्स में आपके पास सिर्फ 4 रूट्स हैं, 4 रूट्स लिख लो। विच 4 रूट्स? 2 डॉर्सल 1 2, 2 वेंट्रल 1 and 2, whereas हॉर्न्स आपके पास 6 हैं, 1 2 3 1 2 3। फनिक्यूलस विच इज़ द वाइट मैटर आपके पास 6 है। अब ये भी MCQ आता है कि फनिक्यूलस वाइट मैटर है कि ग्रे मैटर है? बोलो। वाइट मैटर है। वाइट मैटर है। और हॉर्न्स ग्रे मैटर है कि वाइट मैटर है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर है। असेंडिंग जो जा रहे हैं ब्रेन के पास तो वो सेंसरी लेके जाएंगे ऊपर, तो वो डॉर्सल फनिक्यूलस होगी।
जो डिसेंडिंग आ रहे हैं नीचे ब्रेन से, तो वो मोटर लेके आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, तो वो वेंट्रल और लैटरल फनिकुलस में जाएंगे. So TS of the spinal cord is divided into 6 horns and 6 funiculi. TS of the spinal cord is divided into 6 horns and 6 funiculi. Horns are going to be the grey matter, funiculi are going to be the white matter. जब ये हॉर्न्स बाहर निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये रूट्स बनाते हैं. इट हैज़ कम आउट ऑफ द ड्यूरा मैटर नाउ. ये मेरा यहाँ से अभी वो बाहर निकले हैं. ओके, सो ये मेरा अभी दिस स्पेस जहाँ पे ये रूट्स बाहर निकले हैं, अब ये मर्ज करेंगे, ये हम अभी देखने वाले हैं. हाउ अ स्पाइनल नर्व इज फॉर्म, दिस वी आर गोइंग टू सी नाउ. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो. दिस पोर्शन थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, बट आपको समझ जाएगा तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. बोलो, एनी डाउट? नो मैम. Okay, so we will continue. See now, I am going to do the diagram for only one side now. ये मेरा spinal cord है, ये मेरा H-shaped grey matter है. सिंपल, इसको बनाने की ऐसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको. ये सेंट्रल कैनाल है. अब इसमें मुझे लैटरल हॉर्न्स बनाने हैं. So these are my lateral horns. अब ये जो बाहर निकलेगा यहाँ से, ये होगा डॉर्सल रूट. जो यहाँ से निकलेगा ये होगा वेंट्रल रूट. और ये यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे. ये यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे. दैट इज हाउ एक जो स्पाइनल नर्व रहती है, इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व. It is a mixed nerve because this dorsal is sensory, this is sensory, and this ventral is motor. यहाँ पे ये सेंसरी और मोटर मिक्स होते हैं, यहाँ से जो आ रहा है और यहाँ से जो आ रहा है, ये मिक्स हो रहे हैं, तो हमारी स्पाइनल नर्व ये मिक्स्ड नर्व होती है. दैट इज़ हाउ अ स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड. स्पाइनल नर्व एग्जिट कौन से फोरामिन से करती है वर्टिब्रे में से? हाउ डज इट एग्जिट द वर्टिब्रल कॉलम? कौन से फोरामेन मैग्नम. स्पाइनल नर्व. आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, कहाँ से एग्जिट करेंगी? बोलो. इंटरवर्टिब्रल फोरामिन. वी हैव सीन वर्टिब्री के साइड्स में ये फोरामिन रहते हैं. मैं डायग्राम दिखाती हूँ फिर से. इंटरवर्टिब्रल फोरामिन से ये स्पाइनल नर्व बाहर निकलती है. तो ये एक्चुअली फ्यूज होता है. ये जो फ्यूजन होता है ऑफ दिस सेंसरी विद दिस मोटर, ये होता है एपीड्यूरल स्पेस में. दैट मीन्स ड्यूरा मैटर के बाहर. ये होता है एपीड्यूरल स्पेस में मेरी स्पाइनल नर्व बनी है, विच इज़ अ मिक्स्ड नर्व. Now this is sensory and this is motor. Ventral root is motor, dorsal root is sensory. यही continuation आप ये साइड से भी बनाओगे to complete your diagram. The same continuation of the dorsal root and the ventral root and formation of the spinal nerve will be from that side also. देखो, समझ रहा है क्या? अब ये जो स्पाइनल नर्व बाहर निकलती है, तो इट डिवाइड्स इनटू 3 डिविजन्स. 1, 2 और 3. स्पाइनल नर्व बाहर निकलने के बाद 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं. अगर मैं सिर्फ ये साइड की पकड़ूँ, राइट साइड की पकड़ूँ, तो 31 होंगी. 31 spinal nerves are dividing into 3 branches. तो एक साइड पे कितनी नर्व्स हो जाएगी? बोलो. 93. 93. 93. 93.
each spinal nerve divides into 3 branches after it leaves the vertebral column. Intervertebral foramen से exit होने के बाद spinal nerve divides into 3 branches. MCQ मतलब कि मेरी एक एक नर्व, तो ये कैलकुलेशन एक्चुअली होगा 31 इंटू 2 इंटू 3. देखो आपको समझा क्या मैंने क्यों लिखा ऐसा 31 इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज 31 पेयर्स हैं. सो 31 इंटू 2 कर लिया मैंने वो पेयरिंग के लिए. एंड ईच स्पाइनल नर्व इज गोइंग टू डिवाइड इंटू 3 ब्रांचेस. हाउ मच विल बी दिस कैलकुलेशन? बोलो. सिंपली 93 इंटू 2 कर लो. 186. 186. ये 186 का ऐसा कैलकुलेशन है. एक्चुअली यू डोंट हैव ऑल दिस, बट ऐसे MCQs पूछते हैं. ईच स्पाइनल नर्व इज डिवाइडिंग इनटू 3 ब्रांचेस. ऑलराइट. सो बॉडी के एक साइड पे वो अगर हम डिवीजन भी काउंट करते बैठे तो कितनी नर्व्स होगी? 93 नर्व्स होगी. और अगर टोटल काउंट करें तो 186 नर्व्स होगी. समझ में अगर आ रहा है तो ये कैलकुलेशन इजी है. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इसीलिए MCQ में पूछते भी हैं. अब देखो क्या क्या रूट्स रहते हैं. वन इज द फर्स्ट वन जो यहाँ से आ रहा है इज ramus dorsalis. ramus dorsalis. Other one is ramus ventralis. ramus ventralis. And the other one is ramus communicans. Ramus dorsalis, ramus ventralis, ramus communicans. These are the 3 branches जिसमें स्पाइनल नर्व डिवाइड होती है. जिसमें स्पाइनल नर्व डिवाइड होती है. अब मेरे डायग्राम को अच्छे से फॉलो करना. वी आर गोइंग इनटू सम मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इट, सो फॉलो द डायग्राम नाइसली. ramus dorsalis में, ramus dorsalis ये जो पार्ट है इसमें सेंसरी तो रहेगी ही प्लस मोटर भी रहेगा. आई एम डूइंग दिस मोटर विद द ब्लू वन. मोटर भी जाएगा बाहर और ये जाएगा डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे. ramus ventralis में डॉर्सल तो जाएगा ही, पर उसके साथ यहाँ से ये सेंसरी भी जाएगा. स्पाइनल नर्व बनने के बाद मैं डिवाइड कर रही हूँ, उस पर ध्यान दो. ramus dorsalis will be mixed, having both sensory and motor. Ramus ventralis will be mixed, having both sensory and motor. Ramus communicans will be having only motor. Only motor. मैम ओ कम्युनिके से क्या? Communicants, COMMUNICANS.
आपका डायग्राम कंप्लीट करो. आई विल ऑल्सो शो यू अ पिक्चर जिसमें थोड़ा और ये क्लियर होगा. मैम आपने ramus dorsalis is work for dorsal side of body है, तो ramus ventralis is ventral side of body ना. हाँ. अब आप मुझे बताओ, अगर चींटी मेरे नेक पे चल रही है और पीछे वाले साइड पे नेक पे चल रही है, तो कौन सी स्पाइनल नर्व को उसका सेंसेशन मिलेगा? डॉर्सल रीजन पे है बॉडी के, तो डॉर्सालिस को मिलेगा. और कौन सी एरिया की? सर्वाइकल. यस, सर्वाइकल. वेरी गुड. अगर मेरे स्टमक के आसपास चल रही है चींटी और अगर वो है से मेरे एंटीरियर साइड पे, स्टमक इज ऑन माय एंटीरियर साइड, ओके, सो which spinal nerve will be carrying the sensation for that? ramus ventralis. ramus ventralis. ओके, सो सेंसेशन जाता भी है और आप आपका बैक मूव कर सको अगर आपको इरिटेशन हो रही है, या आपका हाथ पर्टिकुलरली वहाँ पे जाएगा वो चींटी को हटाने के लिए, वो काम करता है उसी से जो मोटर न्यूरॉन आता है. तो ramus dorsalis काम करता है पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी पे या डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ramus ventralis काम करता है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे. सी दिस डायग्राम नाउ. देखो ये मेरा डॉर्सल रूट है, यहाँ से सेंसरी है, ओके, दिस इज सेंसरी रूट, दिस इज माय वेंट्रल मोटर रूट और वेंट्रल रूट. स्पाइनल नर्व बन जाने के बाद जब ये मिक्सिंग हो जा रही है, तो मेरा जो ramus dorsalis है या जो डॉर्सल ramus है, देखो इसमें भी एक ब्लू और रेड है, और ये जो मेरा ramus ventralis है इसमें भी एक ब्लू और रेड है. सो ये दोनों जो रूट्स हैं, ये दोनों जो ramus हैं, अभी रूट्स नहीं है, ये ramus हैं, ये स्पाइनल नर्व के ब्रांचेस हैं और ये स्पाइनल नर्व के कंपोनेंट्स थे. structures which are making up the spinal nerve is the dorsal root and the ventral root. ये spinal nerve बन गई, this is the mixed nerve now. ये mixed nerve के 3 branches होंगे, ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans, which we will see. I want to show you that ramus dorsalis will have sensory as well as यहाँ से देखो ये mix होने के बाद ये एक motor, and ramus ventralis is going to have this motor and this sensory also. So anterior side of the body पे कहीं भी मुझे कुछ फील हो रहा है तो ramus ventralis के थ्रू जाएगा, और अगर posterior side of the body पे फील हो रहा है तो ramus dorsalis के थ्रू जाएगा, और इफेक्ट भी इसी के थ्रू मिलेगा. स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, सो स्पाइनल नर्व की जो ब्रांचेस होगी ramus dorsalis और ramus ventralis ये भी मिक्स्ड होगी. दैट इज़ वन मोर वे यू कैन रिमेंबर इट बाय. स्पाइनल नर्व ये मिक्स हो गई, यहाँ पे मिक्स हो गई, तो इसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं उसमें भी दोनों टाइप के नर्व्स होंगे, सेंसरी एज वेल एज मोटर. बट दिस सेंसरी एंड मोटर विल वर्क ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, दिस सेंसरी एंड मोटर विल वर्क ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. यू कैन एग्जैक्टली टेल द पोजिशन. अगर मुझे हाथ पे चटका लगा है, अगर पीछे वाले साइड से लगेगा तो वो डॉर्सालिस से जाएगा, एंटीरियर साइड से लगेगा तो वो वेंट्रालिस से जाएगा. So much specific is the arrangement of spinal nerves. ये जो 186 हमने कैलकुलेट किया है वो पर्टिकुलरली एक एक एरिया में आते हैं, और पीछे के साइड के लिए एक और सामने के साइड के लिए एक, एज वेल एज राइट साइड और लेफ्ट साइड के लिए भी अलग अलग रहेगी. ये अगर मेरा राइट साइड है तो ये ramus dorsalis होगा मेरे राइट पोस्टीरियर रीजन के लिए, ये ramus ventralis होगा मेरे राइट एंटीरियर रीजन के लिए, और यहाँ से जो दूसरे निकलेंगे, दूसरी स्पाइनल नर्व निकलेगी, वो होगी मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के लिए. सो दैट सो मच स्पेसिफिक इज दैट अरेंजमेंट ऑफ नर्व्स.
All right. Do you want to read this part like from somewhere? स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वी कैन रीड इट टुगेदर. या अगेन ओवर हियर, दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर. देखो, ये मेरा डॉर्सल रूट है, ये मेरा वेंट्रल रूट है. यहाँ से अब ये रैमस डॉर्सालिस है या पोस्टीरियर रैमस है, ये एंटीरियर रैमस है, और ये मेरा रैमस कम्युनिकेंस है. रैमस कम्युनिकेंस ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ये हमने देखा है. तो ये मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, मतलब कि हमारे विसरल ऑर्गन्स पे जाता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ व्हाट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री. तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे जाता है, जो एक्टिविटीज़ हम नहीं कंट्रोल करते हैं. रैमस वेंट्रालिस, यहाँ से सिर्फ एक मोटर नर्व जाती है टू द इंटरनल ऑर्गन्स. वेयर एज मेरा रैमस डॉर्सालिस यानी कि पोस्टीरियर रैमस और रैमस वेंट्रालिस यानी कि एंटीरियर रैमस, इसमें आएगा मेरा रैमस डॉर्सालिस में, ये देखो, एक्सटेरो रिसेप्टर्स और इंटेरो रिसेप्टर्स फ्रॉम द बैक साइड से आएंगे. यहाँ पे पीछे के साइड का, बॉडी का पूरा पीछे का रीजन. यहाँ पे आएंगे फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रॉम द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी एंड द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी. Ramus ventralis will cover your anterior side and ventral side, MCQ, and lateral side. एंटीरियर साइड एंड लैटरल साइड, क्योंकि लैटरल हॉर्न जो था उसका अलग से कोई रूट नहीं निकला था, ये हमने देखा था. वेंट्रल साइड जो है, एंटीरियर साइड जो है, वही लैटरल साइड्स को भी कवर करता है बॉडी की. एंड रैमस कम्युनिकेंस, इट गोज टू द इंटरनल ऑर्गन्स. लिख लिया है ये, या मैं बोलूं फिर से, आप लिख रहे हो? एक बार बोलो ना मैम. हाँ, रैमस डॉर्सालिस आप लिखो फॉर द बैक ऑफ द बॉडी. Ramus ventralis for anterior side of the body and lateral side of the body. Ramus communicans to the autonomic nervous system, to the visceral organs. अब ramus dorsalis के आगे लिखो, it is sensory plus motor. रैमस वेंट्रालिस के आगे लिखो, इट इज़ सेंसरी प्लस मोटर. ये स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस हैं. देखो यहाँ मेरी स्पाइनल नर्व बन गई है, स्पाइनल नर्व बन गई है, ये एक मिक्स्ड नर्व है. उसके बाद यहाँ से यू हैव द रैमस डॉर्सालिस, रैमस वेंट्रालिस एंड रैमस कम्युनिकेंस. तो रैमस डॉर्सालिस सेंसरी प्लस मोटर होगा, रैमस वेंट्रालिस सेंसरी प्लस मोटर होगा, रैमस कम्युनिकेंस सिर्फ मोटर होगा. रैमस कम्युनिकेंस क्या होता है? ये एक तीसरी ब्रांच है स्पाइनल नर्व की. स्पाइनल नर्व आफ्टर इट इज फॉर्म्ड, when it leaves the vertebral foramen, intervertebral foramen, it divides into 3 branches. First branch is ramus dorsalis, second branch is ramus ventralis, third branch is ramus communicans. Dorsalis जाएगा पूरे डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे, वेंट्रालिस जाएगा वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी एंड लैटरल साइड ऑफ द बॉडी पे. आपको उतना ही याद रखना है. और कम्युनिकेंस जाएगा टू माई इंटरनल ऑर्गन्स. इट इज़ कंसर्न विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम.
Okay, reflex action is not in this one, so we'll do it. See this formation of a spinal nerve. All spinal nerves are of mixed type. They have some nerve fibers as sensory and some as motor. So sensory neurons और motor neurons मिलके एक बड़ी nerve बनाते हैं, which will be a mixed nerve. Each spinal nerve is formed inside the neural canal. ये epidural space में बनती है inside the neural canal of vertebral column by two roots, posterior or dorsal sensory root and anterior or ventral root. ये हमने देखा है, dorsal root और posterior root is sensory, anterior or ventral root is motor. Anterior root receives the sensory nerve from the dorsal root ganglion. Cell bodies of sensory neurons are located, ये हम देखेंगे अभी ganglion क्या होता है. While anterior or ventral root, यहाँ पे dorsal root होना चाहिए था. Anterior or ventral root gives out the motor nerve. The dorsal sensory and the ventral motor nerves together form the spinal nerve. It emerges out from both sides of the spinal cord. कहाँ से emerge होती है? Through the intervertebral foramen. As soon as it emerges out of vertebral column, देखो vertebral column से बाहर emerge होने के बाद it shows three branches. The three branches are ramus dorsalis, देखो, from skin and to muscles of dorsal side. Ramus ventralis is the largest of the three, supplies the organs and muscles on lateral side as well as anterior side of the body. This is what I wanted you to write आपके notes में. So अभी लिखो proper way से, जो पहले नहीं लिख पाए थे. And ramus communicans, the smallest of the three, given out कहाँ से है वो आपके लिए नहीं है, but ये sympathetic nervous system को जाती है. अब देखो ये मेरा formation of spinal nerve. ये dorsal root, ये ventral root. यहाँ पे spinal nerve बन गई. Spinal nerve बनने के बाद ये मेरी तीन branches हैं, ramus dorsalis, ramus ventralis, ramus communicans. यही डायग्राम हमने बनाया था. Ramus dorsalis will have sensory and motor both, which will go, देखो बोल रहा है skin, from skin यानी sensory skin से लेगा और muscles के पास जाएगा, neuromuscular junction motor neuron जाएगा. It will have sensory and motor neurons for the dorsal side of the body. Ramus ventralis will have sensory and motor neurons for the lateral and anterior side of the body. And ramus communicans जाता है मेरे autonomic nervous system के पास, means मेरे visceral organs, मेरे internal organs, जो involuntary activities हैं. Only this much you have to remember about the formation of the spinal nerve. बेटा किसी को कुछ नहीं समझा है तो अभी पूछो, पर ये वाला पार्ट देखो आपको क्लियर हुआ है क्या, और ये डायग्राम. अब ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है? हाँ, ये डॉर्सल हॉर्न्स, देखो ये डॉर्सल हॉर्न, ये लैटरल हॉर्न, यू कैन सी दिस, और ये वेंट्रल हॉर्न. तो ये शेप हम ऐसे बनाने नहीं जाते हैं, हम हमारा एच बनाते हैं और वहाँ से एक लैटरल साइड का निकालते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया. तो मेरा लैटरल हॉर्न और ये मेरा वेंट्रल हॉर्न, ये तीन हॉर्न हो गए ये साइड, यही तीन हॉर्न्स ये साइड भी हो गए. और अब ये 1 2 ये मेरा डॉर्सल फनिक्यूलस है, मेरा जो वाइट मैटर है, 1 2, ये 3 और ये 4 ये मेरे लैटरल फनिक्यूलस है, और ये 5 और ये 6 ये मेरे वेंट्रल फनिक्यूलस है. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माई स्पाइनल कॉर्ड. ये हॉर्न जब बाहर निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, ओके, तो ये डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है, और लैटरल हॉर्न बाहर नहीं निकलता है. तो लैटरल साइड को कौन सप्लाई करेगा?
वेंट्रल रूट ही करता है या ramus ventralis करता है, ऐसे याद रखो. Ramus ventralis, it is going to supply to the ventral side of the body and the lateral side of the body. इसीलिए वो लार्जेस्ट है, बिकॉज वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है. ramus dorsalis सिर्फ पीछे जा रहा है, ramus ventralis एंटीरियर और साइड में जा रहा है, और ramus communicans सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स पे जा रहा है, वो और स्मॉलेस्ट है. सो स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व इज, बोलो, which is the smallest branch of the spinal nerve? Ramus communicans. हाँ, and which is the largest branch? ramus ventralis. Yes. Spinal nerve, when it leaves the intervertebral foramen, देखो, from both the sides, एक राइट साइड से निकलेगी, एक लेफ्ट साइड से निकलेगी, वो तो हम देख ही चुके हैं. अगर C1 है तो एक C1 राइट साइड से होगा, एक C1 लेफ्ट साइड से होगा स्पाइनल कॉर्ड के. वर्टिब्रल कॉलम से निकलने के बाद it is going to show 3 branches: ramus dorsalis, ramus ventralis, ramus communicans. And all this structure of the spinal nerve, it is given over here, TS of the spinal cord. ये वाला डायग्राम हमने देखा है, देखो, ये पोस्टीरियर मीडियन फिशर और ये सेप्टम, ये जो मैंने एक लाइन बनाई थी सेपरेट कर रही है ये 2 कंपार्टमेंट्स को, ये एंटीरियर मीडियन फिशर. दिस इज गोइंग टू बी अ डीप फिशर. तो ये जो वाइट मैटर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. ये 1 2 3 4 और 5 6. अब ये मेरे हॉर्न्स हैं जो अंदर के हैं. सो डॉर्सल हॉर्न, सी लेबलिंग अगर अंदर दे रही हूँ तो डॉर्सल हॉर्न, यहाँ से बाहर निकाल के दे रही हूँ तो डॉर्सल रूट. ये क्या चीज़ है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंडिंग ऐसे लेयर दिया हुआ है, ये क्या है? मेनिंजस. सो ये बनाना ज़रूरी है डायग्राम में, मेनिंजस बनाना ज़रूरी है डायग्राम में. और ये मेरा सेंट्रल कैनाल है. ये लैटरल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न, ये वेंट्रल रूट बाहर अगर दे रहे हैं लेबलिंग, तो ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है. दिस कंप्लीट transverse section of the spinal cord we have done. Ma'am, what are those ganglions, like dorsal हाँ. root ganglion also Yes. given, and We are coming to it. We are coming to it. चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछो. All right. Amongst the dorsal and the ventral root, the dorsal root has a dorsal root ganglion. Ganglion is the collection of nerve cell bodies. यहाँ पे cell bodies concentrated रहेगी, cell bodies concentrated रहेगी. तो ये जो dorsal root में जो न्यूरॉन्स आते हैं वो actually pseudo unipolar type के रहते हैं. Now what is pseudo unipolar? See this now. I'll show you. Do you remember pseudo unipolar neuron? ये बॉडी रहेगी, एक ही उसका एंडिंग रहेगा, और यहाँ से डेंड्राइट, और यहाँ से एक्सॉन, ऐसा. सूडो यूनिपोलर, यहाँ से एक ही निकलेगा, दैट डिवाइड्स इनटू डेंड्राइट्स एंड देन एक्सॉन. तो ये जो मेरा डॉर्सल रूट है नाउ, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है. दिस इज माय एच शेप्ड ग्रे मैटर. आई एम गोइंग टू डू द लैटरल हॉर्न्स ओवर हियर. ये मेरा अब डॉर्सल रूट है. दिस इज गोइंग टू हैव अ गैंग्लियन विच इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन. यहाँ पे ये सेल बॉडी लोकेटेड रहेगी, देखो, और यहाँ से आएगा एक स्ट्रक्चर अंदर,
तो अंदर क्या आएगा और बाहर के साइड क्या जाएगा वो बताओ मुझे। ये एक न्यूरॉन है, इसका डेंड्राइट इधर आया और एक्सॉन इधर आया। यस, डू यू रिमेम्बर हमारा सेंसरी न्यूरॉन बाहर क्या आएगा? डेंड्राइट। हाँ, बिकॉज रिसेप्टर से ये वाला डायग्राम आ जाओ अभी हम। सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे थे अंदर थ्रू डॉर्सल रूट, स्पाइनल कॉर्ड में थे मेरे इंटर न्यूरॉन्स और यहाँ से वापस जा रहे हैं मेरे मोटर न्यूरॉन्स। हमने कल ये देखा था कि सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स बनेगा उसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स रहेंगे और इंटर न्यूरॉन का क्या रहेगा? डेंड्राइट्स, इफ यू रिमेम्बर। समझ रहा है सबको या किसी को यहाँ पे डाउट है तो मैं बताऊं फिर से? तो ये मेरे डेंड्राइट्स ये साइड पे रहेंगे और एक्सॉन ये साइड पे रहेंगे। ऐसी बहुत सारी सेल बॉडीज ये गैंग्लियन में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं जिनके डेंड्राइट्स यहाँ हैं और एक्सॉन्स अंदर हैं। एक्सॉन्स अंदर हैं, डेंड्राइट्स यहाँ हैं। ये होता है डॉर्सल रूट गैंग। वेंट्रल रूट में ऐसा कोई गैंग्लियन नहीं है। आई टेल यू द रीजन वाई। वेंट्रल रूट में सेल बॉडीज यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। तो अभी इस पे भी एमसीक्यू आता है। इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज अंदर ही रहती है। इंटर न्यूरॉन इनफैक्ट कंप्लीटली अंदर ही रहता है। वेंट्रल रूट की सेल बॉडीज अंदर ही रहती हैं और सिर्फ एक्सॉन यहाँ से बाहर जाते हैं। समझ रहा है मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। डॉर्सल रूट में सेल बॉडीज गैंग्लियन में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। अब ये मेरे सूडो यूनिपोलर वाले गैंग्लियन न्यूरॉन टाइप्स हैं। तो ये मेरी सेल बॉडी है, एक साइड डेंड्राइट दूसरे साइड एक्सॉन। तो ये साइड डेंड्राइट रिसेप्टर की तरफ, ये साइड एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब ये एक्सॉन सिनेप्स बनाएगा मेरे इंटर न्यूरॉन के साथ। इंटर न्यूरॉन का डेंड्राइट और ये सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन। दिस विल बी माय फर्स्ट सिनेप्स। इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज अंदर ही रहती हैं। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज अंदर ही रहती हैं ग्रे मैटर में। लेकिन कौन सा न्यूरॉन है या कौन सा रूट है जिसकी सेल बॉडीज अंदर ग्रे मैटर में नहीं रहती हैं? बोलो। कौन सा रूट है? डॉर्सल रूट है। उसकी सेल बॉडीज बाहर रहती हैं, यहाँ ग्रे मैटर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है सेल बॉडीज। सो दिस इज द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब ऐसा अरेंजमेंट क्यों है ये तो हमको इसकी डीप में नहीं जाना है, बट ऐसा अरेंजमेंट है इसीलिए हमारा ये जो पूरा डायग्राम हम बनाते हैं उसमें हमको डॉर्सल रूट में ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाना पड़ता है। व्हेन आई कम फ्रॉम हियर ऑल्सो मुझे ये गैंग्लियन बनाना पड़ेगा। दिस इज माई डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वेंट्रल रूट में ऐसा कोई गैंग्लियन नहीं रहेगा। This ganglion is going to have the collection of neuronal cell bodies. तो इसका डेंड्राइट इधर से आएगा रिसेप्टर साइड से और एक्सॉन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। समझ रहा है कि हैवी हो रहा है? थोड़ा सा हैवी होगा आज का लेक्चर। बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑल राइट, तो कैसे करना है इसको? कल फिर से कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप पूरा पॉइंट वाइज नोट्स लिखो और वी कैन डू इट अगेन, बट समझना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली स्पीकिंग, कम टू योर स्टेट बोर्ड पार्ट। यू हैव योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विथ यू, ऑल ऑफ यू? यस मैम। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलो।
NCERT टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. सी, you must have experienced sudden withdrawal of body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed. जैसे ही हम अपना हाथ या कुछ भी रिमूव कर देते हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ काम में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिम्युलेशन. ये हमारी पेरिफेरल नर्व्स स्टिम्युलेशन देती हैं, तभी वो मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास. दिस अकर्स इनवॉलेंट्री, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट. हम सोचते नहीं है कि गर्म है तो क्या करें, गर्म लगा कि बॉडी इमीडिएटली हाथ को विड्रॉ कराती है वहाँ से. सो दिस action which occurs involuntarily without conscious effort or thought and requires the involvement of a part of the central nervous system is called reflex action. रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज ऑफ, अब क्या क्या रहता है एक रिफ्लेक्स पाथवे में, ये हमने कल देखा है. एक रिसेप्टर रहेगा, ओके, कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन. पहले तो रिसेप्टर रहेगा, फिर एक एफरेंट न्यूरॉन रहेगा, ये एफरेंट न्यूरॉन जा रहा है ब्लू कलर का, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज. तो ये एफरेंट न्यूरॉन है, देखो ये इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, और ये मोटर न्यूरॉन है. देखो, तो एक रिफ्लेक्स के लिए दो मोटर न्यूरॉन भी आ सकते हैं. एक ऊपर के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये पैर मूव होगा. सिर्फ इतना ही पाथवे यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अकॉर्डिंग टू योर नीड. द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन and transmits the impulse via a dorsal nerve route into the central nervous system. एफरेंट न्यूरॉन डॉर्सल साइड से आएगा स्पाइनल कॉर्ड को, ये डॉर्सल साइड है देखो. इफरेंट न्यूरॉन then carries signals from central nervous system to effector. तो ये हमारा वेंट्रल रूट से जाएगा. बट बिकॉज इन दिस डायग्राम ये टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, यू आर शोन वाइट मैटर, यू आर शोन ग्रे मैटर, यू आर शोन इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, वेंट्रल दैट इज द मोटर न्यूरॉन. इसलिए हमको ये सब थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है. यहाँ पे ये फिशर भी दिखाया है, देखो एंटीरियर वाला डीप है, पोस्टीरियर वाला शैलो है, ये सेंट्रल कनाल है बीच में, ये एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन बोलते हैं उसको, या एडजस्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये है. सो रिफ्लेक्स एक्शन में हमको समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि स्टिमुलस मिली तो ये जाती है एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, तो ये डॉर्सली जाएगी स्पाइनल कॉर्ड को, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, इंटर न्यूरॉन्स होंगे, और फिर ये आएगा वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू. और ये जो सिनेप्सिस बनते हैं यहाँ पे, तो कौन सा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, कौन सा पोस्ट सिनेप्टिक होगा, जो हमने कल किया है, और ये वापस आएगा. इतना ही समझना है आपको. और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो वो बॉडी को डेंजर से हटा रहा है, ये क्विक एक्शन है. जहाँ पे हमको थॉट चाहिए, देखो यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट और थॉट नहीं लगता है. जहाँ पे हमको थॉटफुल प्रोसेस सोचना पड़ता है, हम यहाँ से ब्रेन को भेजते हैं. तो ऊपर जाने वाले असेंडिंग, नीचे आने वाले मोटर. इतना ही पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अबाउट योर रिफ्लेक्स एक्शन. बट स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, इसीलिए हमको उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये डायग्राम्स आपको बनाते आने चाहिए. सो बोलो, कल फिर से करते हैं रिवाइज, फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से पॉइंट्स लिखते हैं, या बोलो आपके सजेशंस बोलो. लास्ट जो पढ़ा है ना गैंग्लियन वाला, वो फिर से कर लो. क्या? हाँ लास्ट वाला. ओके ओके ओके. बाकी समझा है क्या बेटा आप लोगों को? रामस डॉर्सालिस, रामस वेंट्रालिस, रामस कम्युनिकेंस, वो समझा है क्या? Once I am able to go to ma'am's place, I'll put a recorded lecture also on this part. तो बोर्ड पे आपको डायग्राम्स और वो समझ में आएगा. ओके, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर. Yes, ma'am. हाँ, so later on that can also be done.
ये पार्ट है, देखो, इफ यू ऑल हैव द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, ये वाला पार्ट है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सी, कैन यू सी 6 columns of funiculi, white matter, 6 horns, namely dorsal, lateral and ventral horns, ये हमने देखा है. और ये गैंग्लियन वाला पार्ट है. ठीक है, गैंग्लियन वाला पार्ट हम कल फिर से करते हैं. चलो, आप मुझे बताओ कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क. नाउ व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क? afferent neuron and efferent neuron. दैट्स इट. रिसेप्टर क्या होगा? रिसेप्टर मेरा स्किन होगा, मेरा कोई भी सेंस ऑर्गन होगा जो रिसीव कर रहा है स्टिमुलस. सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क विल बी रिसेप्टर. रिसेप्टर के बाद आएगा सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन. उसके बाद आएगा इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन. इसी को एडजस्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं. इसके बाद आएगा मोटर न्यूरॉन. और इसके बाद क्या आएगा? Effector organ. इफेक्टर ऑर्गन. पहला रिसेप्टर, दूसरा एफरेंट न्यूरॉन, तीसरा इंटर न्यूरॉन, चौथा मोटर न्यूरॉन, पांचवा इफेक्टर ऑर्गन. ये 5 कंपोनेंट्स होंगे मेरे रिफ्लेक्स आर्क के, जो मेरी रिफ्लेक्स एक्शन करा रहे हैं. These 5 will be the components of my reflex action. इसको कोरिलेट करो वो कल वाला डायग्राम जो हमने किया था. सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं, फिर ये इंटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड में. सो सेंसरी आ रहा है डॉर्सल रूट से. अब यहाँ से सिग्नल लेके जा रहा है मेरा मोटर न्यूरॉन और ये आएगा इफेक्टर में. सेंसरी आ रहा है मेरे रिसेप्टर से. ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है. डू यू रिमेंबर दिस डायग्राम? सो अगर मेरा स्पाइनल कॉर्ड काम कर ले रहा है तो वो स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा. अगर मुझे ब्रेन के पास भेजना पड़ रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है किसी एक्शन के लिए, थॉटफुल प्रोसेस है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये मेरा ब्रेन है, और यहाँ से नीचे आएंगे. ये ऊपर जाएगा डॉर्सल फनिकुलस से. नाउ यू नो व्हाट इज डॉर्सल फनिकुलस. और नीचे आएगा लैटरल और वेंट्रल फनिकुलाई. What we can do is I can give you notes of this part and then we can revise those points from the notes along with diagram. All right. So वो थोड़ा सा easy होगा आपको. और नीट के लिए, MCQs के लिए उतना डिटेल में नहीं है, बट या डॉर्सल रूट गैंग्लियन आपको है, उसमें जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स रहेंगे वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कल फिर से. और कोई डिफ़िकल्टी बोलो. यू कैन से फ्रैंकली. किसी को भी कोई पार्ट नहीं समझा है, हम फिर से ले सकते हैं.